آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج ہم وہ عمل جو ہم نے عشرے کے شروع میں کیا تھا آج پھر اس کو دہرانے جائیں گے۔ وہ لوگ جن کا آج 10واں روزہ ہے تو 10ویں روزے کی افطاری کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم سورۃ کوثر کا عمل کریں گے۔ پورا سال تو 129 بار ہم سب سورۃ کوثر پڑھتے ہی ہیں، ایوری ڈے، صبح شام والے لوگ بھی ہیں۔ رمضان میں ہم اس کی فل تاثیر لیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ چاند کی ایز یوزول غلط فہمی کہہ لیں یا دو گروپ ہیں، کچھ کی وہ کل تھی 10ویں رات، کچھ کی آج تھی۔ مسلسل کوسچن یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہم کب وہ اعمال کریں۔ تو کل بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی لوکل مسجد جس کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا ہے، جہاں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ کے مرد پڑھ رہے ہیں یا عورتیں پڑھ رہی ہیں، جہاں آپ نے عید پڑھنی ہے، آپ انہی کے ساتھ اعمال اسی طرح سے کریں گے۔ تو آج جن کا 11واں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات ہوگی وہ 12 نفل والا عمل کریں گے، رشتوں والا اور مالی خوشحالی والا۔ جن کا آج 10واں روزہ ہے، جیسے درم کا، مارکھم کا، یا 10واں روزہ ہے، تو وہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم افطاری کے بعد پوری رات میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم سورۃ کوثر پڑھیں گے کیوں؟ کوئی اور سورت کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یعنی آج سورۃ قریش بھی تو 129 بار پڑھ سکتے تھے نا، ویلڈ کوسچن ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سورۃ کوثر ہی کیوں پڑھیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف مسندوں اور مختلف آپ یوں کہہ لیں کہ جو روحانیت نورانیت کے سلسلے ہیں، درویشوں کی گدیاں ہیں، وہاں پہ وہ اپنے متقدین کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اعمال مستقل انہوں نے کیے ہیں، سال ہر سال کیے ہیں، اور ایک لیول پہ جا کے انہیں جب یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس عمل کی تاثیر اس جگہ پہ، اس مقام پہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر انہوں نے اس کی کثرت کی اور اس کی ایک تعداد ہمارے لیے لکھ دی۔ آپ 313 نہیں کرنا چاہتی، آپ کھلا پڑھیں، پوری رات سورۃ کوثر پڑھیں۔ آپ سورۃ قریش پڑھنا چاہتی ہیں، گو ہیڈ۔ کوئی دیکھیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی ضائع کرتے ہیں، بلا وجہ کے کوسچن ریفرنس دے دیں۔ آج پھر میں آپ کو سورۃ کوثر کے ریفرنس پہلے دیتی ہوں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی تسبیح تو نہیں کر رہے کہ جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن کوئی گستاخی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ سورۃ کوثر کو اگر پڑھیں گی تو اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اے میرے محبوب، جب اس طرح سے بات اللہ عز و جل کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہے؟ تشفی، کمفرٹ دے رہے ہیں اپنے نبی کو پیار سے۔ بے شک ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ کو کیونکہ اتنی نعمتیں اور خیر کثیر دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھیں، قربانی کریں، دشمن کی فکر نہ کریں۔ بے شک آپ کا دشمن، اس کو کوئی خیر نہیں ملے گی، وہ ابتر حالت میں رہے گا، دم کٹا رہے گا، بے نام رہے گا، خیر سے محروم رہے گا۔ یہ تو ہے صورت، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ترجمہ پڑھ کے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی ہے محبت سے۔ اب یہ صورت نازل کب ہوئی؟ یعنی اس کا شان نزول کیا تھا، واقعہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آپ سنیں تو آپ یا بولیں تو آپ کیا کریں؟ آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے کسی شہزادے کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے؟ اس پر جو دشمنان دین تھے، ابو لہب، عقبہ، عاص بن وائل، کچھ بھی کہہ لیں، وہ کھلے جملے آپ پہ کسنے لگے، آتے جاتے، دل آزار۔ ایک تو ہوتا ہے تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا نشتر لگانے والے ہوتے ہیں، اور نشتر لگانے والے کوئی غیر لوگ نہیں ہوتے، اپنے ہوتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو کینہ اور حسد کی بات کچھ دن پہلے کی تھی رمضان میں، تو یہی بتایا تھا کہ ہم پلہ، رشتہ دار، کزن، چاچے، مامے، پڑوسی، یعنی بزنس مین سے جلے گا، عالم سے جلے گا، حافظ سے، یہ ایک رقابت اپنے ہم پلہ سے ہوتی ہے، تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ تو یہ چچے مامے چاچے جو تھے اپنے ہی خاندان والے، وہ جملے کستے تھے،
और वो क्या कहते थे जहाँ से आप गुजरते थे ना, कहते थे वो छोड़े, इसकी तो बात ना करें, नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला, ये ऐसा आदमी है जिसकी जड़ कट चुकी है, नाम मिट चुका है, इसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब ये खुदा न खास्ता इस दुनिया से चले जाएंगे तो इनका नाम मिट जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पे आपको तसल्ली दी है और ये सूरत नाजिल फरमाई है क्या, मेरे हबीब इन लोगों की बातों पे दुख ना करें, गम ना करें, रंजीदा ना हों, हमारे फजलो करम पे नजर रखें। हमने आपको बेशुमार खूबियां दी हैं, नेमतों से नवाजा है, आप बस शुक्राने में हमारी नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें। जहां तक दुश्मनों का मामला है, उनकी तो ऑलरेडी जड़ कट चुकी है। आज आप देख लें, मेरे रब के कौल की तासीर में आज किसी घर में आपको कोई अबू लहब नजर नहीं आता, अबू जहल नजर नहीं आता, लेकिन हर घर में कहीं कहीं मोहम्मद नाम के बच्चे पाए जाते हैं। ये नाम, ये जड़ कटना, ये अबतर होना, लिहाजा जब भी आपको लगे कि आपका दुश्मन आप पे वार कर रहा है तो आप सूरत कौसर पढ़ा करें कि अल्लाह सोने ये तशफ़ी आपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं दी सिर्फ, क्योंकि कुरान क़यामत तक का है, इसके बोल क़यामत तक के लिए हैं, ये हम कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए है, बल्कि उम्मत के लिए है, हर पूरी इंसानियत के लिए है। अल्लाह करीम ये तशफ़ी मेरे लिए भी है। कोई जादू जिन्नात, कोई नजरे बाद, कोई हसद, कोई दुश्मनों के वार, कोई बेऔलादियाँ, तो इस आए सूरत में खैर कसीर है। कुरान की छोटी सी सूरत में अगर ये तासीर है तो सोचें पूरे कुरान में क्या है। और हकीकत यही है कि रहती दुनिया तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम होगा, वो इसी आयत के अंडर आएगा। आप ये देखें कि जिस किसी ने मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसा लफ्ज बोला है, वो इसी आयत के तहत अबतर रहेगा, बेनाम रहेगा, दुम कटा रहेगा, उसका निशान मिट जाएगा, बेनिशान हो जाएगा, मेरा रब उसको जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि ये मुहिब और हबीब का मामला है। अब ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आपकी अजमत, वजाहत, मोहब्बत के लिए एक प्यारी सी, इसको दलील कह लें, ठीक है ना, कि जब काफिरों ने मजाक उड़ाया तो अल्लाह पाक ने खुद जवाब दिया। जिससे मोहब्बत होती है ना, अब कोई बात करता है मेरे बारे में तो किसी से, तो वो उसको वहाँ ही बता के आते हैं, जवाब दे के आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी नहीं है वो। लेकिन अगर जिसको मोहब्बत नहीं होगी वो आके मुझे बताएगा और कहेगा कि फलां आपके बारे में ये बात कर रहा है, लेकिन जो अपना होगा वो उधर ही उनको संभाल के आ जाएगा कि नहीं बीबी ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, ठीक है ना। तो जो जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं उसको डिफेंड करते हैं। तो ये सूरत इस बात की भी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मजाक उड़ाया गया तो मुहिब ने खुद जवाब दिया है। और ये कुरान में बार बार में कई जगहों पे और भी नजर आता है, जैसे वलीद बिन मुगीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला, दीवाना मजनू। तो अल्लाह पाक ने वलीद की मजम्मत में सूरत नून, सूरत कलम में 9 उसकी खामियां लिस्ट में बताई हैं, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, यानी जैसे बंदा को गुस्सा नहीं आता, ये जो सूरत कलम में ये तासीर है कि जिस किसी को गीबत और चुगली की आदत है, अगर इसको इस सूरत को रोज पढ़े, बल्कि इसे मैं कहूँगी आप जुबानी याद करें। ये नजर बाद हसद के लिए सूरत कलम बेहतरीन है। और जब बच्चा पैदा होता है, अगर इसका दम करके पानी का छींटा उस पर दिया जाए, अल्लाह करीम उसे बुलंद वक्त करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं और बुरे अखलाक से बचाते हैं। क्योंकि ये जो 9 लिस्ट आपने गिनवाई है ना, अल्लाह इज़्ज़ो जल ने 9 खामियां उसकी बताई हैं वलीद की, उसके नाक नक्शे बयान किए हैं और फिर आखिर पे तसल्ली दी है, तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो, आप दीवाने नहीं हो। फिर इसी तरह यानी इस सूरत को आप पढ़ा करें, इससे गीबत, इन दिनों गीबत और चुगली बड़ी आम हो गई है। आप यकीन करें मेरा रब आपको बचा लेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, इंशाअल्लाह बचा लेगा। आप सूरत कलम से दोस्ती लगाएं। अच्छा, एक मौके पे ना, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको डिफेंड करते हैं। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते हैं तो वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप सूरत कलम में डिफेंड किया, सूरत कौसर में डिफेंड किया, अब सूरत लहब में, ठीक है ना, अबू लहब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की ना, तो अल्लाह करीम ने पूरी एक सूरत उसकी मजम्मत में उतार दी कि
तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, तू हलाक ही हो जाए। यानी हद कर दी ना, इतना गुस्सा आया अल्लाह इज़्ज़ वजल को। तो ये जो सूरत है ना, सूरत लहब, इसको अगर बगैर तस्मिया के आप फजर की अजान से पहले, वो बच्चा बड़ा जो नशा करता है, अक्सर बच्चियों के मैसेजेस आते हैं, हस्बैंड शराब पीते हैं, नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह, नशा करते हैं, बक बकारे घर में आके गाली गलोच आधी रात को आके, तो आप ये जब वो सो जाए ना, बेसुध हो के गिर जाते हैं, तो उनके सराहने ये थोड़ी सी हल्की ऊंची आवाज में पढ़ा कर एक बार पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके नशे के हाथ टूटेंगे, उनके नशे के जाम टूटेंगे अल्लाह की रहमत से। इस आयत में मेरे रब ने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को जो जवाबी कार्रवाई दी है, वो रज़दाइल उम्मत में फिर पैदा नहीं होते अगर वो आयात हम तलावत करते हैं। फिर अल्लाह पाक ने सूरत कौसर की हम बात करते हैं, जहाँ पे आपको फरमाया कि इन्ना आतवाइना कल कौसर, यानी आपको बेशुमार खूबियाँ दे दी हैं, खैर कसीर में आपके अखलाक भी हैं। सूरत कौसर पढ़ने वाला बाइखलाक भी हो जाता है, क्योंकि कौसर जो लफ्ज़ है ना, उसके मानी है कसरत, यानी इतनी कसरत के मुबालगे का सिया हो, बहुत ही ज्यादा, बेइंतहा कसीर, किसी चीज का इतना ज्यादा होना कि लोग अंदाजा ही ना लगा सके, सोचों गुमानों ख्यालों से ज्यादा, वो कसरत तादाद, वो किस में आपको दिया है, वो मिकदार में है, मियार में है, मर्तबे में है, इतबार में है, किसी तरह भी है कि आप, यानी फरमाया जा रहा है कि दुश्मन, आपका जो दुश्मन ये वो समझ रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, यानी आपका बेटा फोत हो गया है, मगर हकीकत यह है कि हमने आपको इतना दिया है, इतना ज्यादा दिया है कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और लफ्ज़ कौसर में बहुत कुछ शामिल है, इसको एक आयत ना समझें, इसमें खजाने हैं। उसकी एक दलील पता है क्या है, कि कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है। अबू दाऊद में है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया, मुझ पर अभी अभी एक सूरत नाजिल हुई। फिर आपने सूरत कौसर आखिर तक पढ़ी, फिर फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया, वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। और एक दूसरी हदीस इससे मिलती जुलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में चला जा रहा था कि अचानक एक नहर आ गई जिसके किनारे खोखले मोतियों के कुबे बने हुए थे, यानी वो जो होल वाले खाली गोल्ड ट्रांसपेरेंट अंदर से खाली मोती, उनके बड़े बड़े मीनारे बने हुए थे। मैंने कहा, ए जिब्रील ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, यह कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। फिर देखा तो इसकी खुशबू, यानी इसकी मट्टी जो महक रही थी ना, वो कस्तूरी की तरह थी। ये बुखारी शरीफ में है। एक और कौल भी है कौसर के बारे में कि कौसर है क्या, इससे मुराद है हौज़े कौसर। एक है नहरे कौसर जो जन्नत में, एक है हौज़े कौसर। ये हजरत अनस से एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे हुए थे, अचानक आपको ऊँग आ गई। आपने मुस्कुराते हुए सर अक़दस बुलंद किया और फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरत कौसर की तलावत फरमाई और फरमाया, क्या तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने कहा, अल्लाह और उनके रसूल को ज्यादा इल्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। ये वो हौज है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत पीने के लिए आएगी। ये मुस्लिम शरीफ में है। अब नहर कौसर तो जन्नत में है, हौज़े कौसर कहाँ है? मैदान महशर में होगा। और वो जो जन्नत की नहर है, फतह बारी में जो इसकी तफसीर लिखी है वो ये है कि जन्नत से दो परनाले उस नहर से आ रहे होंगे जो इस हौज पे गिर रहे होंगे, यानी हौज़े कौसर की असल भी जन्नत वाली नहर कौसर ही है। अब हौज़े कौसर की शान में मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि उसके जो बर्तन है ना, यानी उसमें हमें प्याले भी तो दिए जाएंगे ना, हम कहते हैं ना कि जामे कौसर हौज़े कौसर से वाली कौसर से पिलाना। तो अब वो जो बर्तन, जो जाम हमें दिए जाएंगे, जो हमें ट्रांसपेरेंट बर्तन दिए जाएंगे, वो इतने साफ और शफाफ होंगे कि रात की तारीकी में रोशन आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा वो चमक रहे होंगे, जो प्याले हमें इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह पकड़ाए जाएंगे। और जो इसमें से आबे कौसर पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, प्यास ही मिट जाएगी। हशर के मैदान की प्यास वो हौज़े कौसर से बुझेगी।
दुआ करें कि अल्लाह करीम हम सबको, पूरी उम्मत के जिन्नो इनस को हौज़े कौसर पे एक कतार पे खड़ा हो करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीना नसीब फरमाए, उन चमकते बर्तनों का जिनका हम जिक्र रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों में बैठ के यहाँ कर रहे हैं। अल्लाह करीम इस घड़ी को कबूलियत की घड़ी बना दें, और मेरे सोने मालिक हमें ज़रूर उस हौज़ पे, उस कितार में खड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफ़क़त से जामे कौसर पिलाना। इस हौज़ की चौड़ाई और इसकी लंबाई एक जितनी है, सोचे सही। और जो फासला बताया गया अमान से ईला तक का फासला, इतनी चौड़ाई और इतनी लंबाई है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा है, और ये मुस्लिम शरीफ में है। अब नहर कौसर और हौज़े कौसर बज़ाहिर दो आपको बातें लग रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक ही कौल का हिस्सा है, यानी खैर कसीर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कौसर से मुराद वो खैर है, वो भलाई है जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। ठीक है ना। एक और रिवायत में है कि वो जन्नत में एक नहर है। इस पर आपने जवाब दिया कि जन्नत में जो नहर है वो भी खैर में शामिल है, जो यानी नहर भी आपकी है, हौज़ भी आपका है। मजमूई तौर पर आपको कौसर की तफसीर में जो हमें हदीस मिलती हैं वो तकरीबन 30 अकवाल मिलते हैं, 30। और हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खैर अता की गई है, और जो ये सूरत पढ़ेगा। और खैर में क्या है? खैर कसीर में कुरान, सबसे बड़ी खैर तो कुरान है, इससे अजीम खैर क्या होगी? फिर हिकमत, तो जो आपको हिकमत अता की है, अब हम इस सूरत को पढ़ेंगे, खैर कसीर के तालब बनेंगे, तो हमें हिकमत नहीं मिलेगी। आज हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े, जॉब्स पे ले ऑफ, लड़ाइयाँ, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। ये हिकमत की कमियाँ, ख़ानदान टूट रहे हैं। हिकमत मिलती है, खैर के ख़जाने अता होते हैं, हिकमत के ख़जाने अता होते हैं। हिकमत को खुद कुरान ने खैर कसीर फरमाया सूरत बकरा में। ठीक है ना। अलगर्ज़ आप यूँ समझ लें कि अल्लाह इज़्ज़तजल ने आपको जो खूबियाँ अता फरमाई हैं उसमें खैर कसीर में कुरान भी है, नबूवत, रसालत, इस्लाम, आसान शरई अहकाम, हिकमत, इल्म, मार्फत, नूर कलब, पाकीज़ा किरदार, इबादत, रियाजत, इखलाक़ हुस्ना, ख़साइल हमीदा, शमाइल जमीला, मोजज़ात, शफ़ात, मकाम महमूद, हौज़े कौसर, नहर जन्नत, सारी की सारी जन्नत आपकी है। और फिर सहाबा जैसी पाकीज़ा जमात, उम्मत की कसरत, दीन का गलबा, दुश्मनों पे रोब, फतूहात, आली नस्ब होना, ज़ाहिरी हुस्न, बातनी हुस्न, यानी दुनिया और आखिरत की सारी रिफतें, सारी इज्जतें। अब जो ये सूरत पढ़ेगा क्या वो उससे महरूम हो जाएगा? मेरे रब की रहमत लामहदूद है, महदूद नहीं है, वो लामहदूद रहमत है। लिहाजा पढ़ने वाले को भी वो खूबियाँ अता होती हैं। और शुक्राने में क्या करना है? नमाज पढ़नी है, कुर्बानी करनी है, तो दुश्मन खैर से महरूम रहेगा। अबतर कौन है? अबतर क्या है? अबतर से मुराद ये है, जैसे हम कहते हैं उसकी हालत बड़ी अबतर है, बड़ी पतली है। फिर उसमें एक पंजाबी में कहते हैं बड़ा ओतर है, उसकी जाड़ी मिट गई है, उसकी नस्ल ही खत्म हो गई है, दुम कटा। आप पे जादू है, आप पे जिन्नात हैं, खुदा न खास्ता बे औलादियाँ हैं, बच्चों के रिश्तों के मसाइल हैं, माली तंगियाँ हैं, रोज़ी रोटी का मसला है, इल्म हिलम का मसला है, हदायत के दरवाजे बंद हैं। इसे पढ़ें, इससे पढ़ें। ये जादू जिन्नात के लिए इस सूरत में इतनी तासीर है, क्योंकि जब खैर कसीर आ जाती है तो शर कसीर मिट जाता है। क्योंकि शेर को सवा शेर जब मिलता है तो वो खुद ही राय छोड़ देता है। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रमज़ान में इस सूरत को हर अशरे के शुरू में, इस सूरत को हर अशरे के शुरू में, हमने पहली रात में जब रमज़ान शुरू हुआ तो इसे 313 बार पढ़ा। 313 बदरी डिजिट है। बदर में साहब बदर की तादाद 313 थी। इसकी तासीर लेने के लिए पहले अशरे के चांद रात को इसको 313 बार पढ़ा। अब दूसरा अशरा आज रात को शुरू होगा तो 313 बार पढ़ेंगे। फिर जब हम इत्काफ करने लगेंगे 20वें और 21वें रोज़े की दरमियानी रात, फिर 313 बार पढ़ेंगे। फिर 27वीं रात 1100 बार पढ़ेंगे। पूरी फैमिली के साथ हम मिलके पढ़ सकते हैं। 1100 ना पढ़ सकें 313 पढ़ लें, और ईद के दिन अल्लाह पाक से 313 बार पढ़ के ईदी लेंगे। और फिर पूरा साल 129 129 बार पढ़ के इसकी तासीर पाते रहेंगे। और फिर ये हिफाजत भी है, जादू जिन्नात से भी बचाती है। आप ये देखें, आज बच्चा आपका रो रहा है, आप सूरत कौसर पढ़ के उसके मुंह के ऊपर दम करें, वो खामोश हो जाता है।
आप اس में खैर ही कितनी मैंने लिस्ट आपको गिनवाई है, इसमें खैर ही खैर है। आप इससे दोस्ती लगाएं, इस सूरत से मोहब्बत करें, इससे इश्क करें, इसकी तासीर रमज़ान में आप लें। अभी मैंने फेसबुक पे एक हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी का कॉल मेरे आंखों के सामने से गुजरा, मैंने उसको डाला और उस सूरत के तनाज़र में अगर आप उसको लें कि उनके मकतूबात में लिखा हुआ है कि जिसका रमज़ान मुंतशर और बेतरतीब गुजरेगा उसका पूरा साल इंतशार और बेतरतीबी का शिकार रहेगा। जिसका रमज़ान मुज्तमे और कीमती गुजरेगा पूरा साल ऐसा ही होगा। तो अगर रमज़ान में हम इस अमल को कीमती करके करेंगे तो पूरे साल में जो हम रोज़ 129 बार ये सूरत पढ़ते हैं उसकी तासीर दोबाला हो जाएगी, क्योंकि उस सूरत को पानी रमज़ान का ये अमल देगा। ठीक है ना। तो हमने इस सूरत को पढ़ना है। लोग डंडा लेके आपके पीछे पढ़ेंगे, और जितने डंडे मुझे पढ़ते हैं ना आपको अंदाज़ा ही नहीं है ना कि कहाँ लिखा है, क्यों बता रहे हैं, क्यों तस्बीह इनको दे रहे हैं, क्यों पढ़ने पे लगा रहे हैं। इन्हें छोड़ें खुला, मालूम में फिरें, ईद बाज़ारों में फिरें, शॉपिंग्स करें, इफ्तारियों की दावतें करें, दावतों पे जाएं, मजमे लगाएं, ठट्ठे करें, सोशल मीडिया पे बैठें। आप किन चक्रों में इनको लगा रहे हैं? तो कोई बात नहीं, ये फैसला तो मेरे रब के दरबार में होगा ना। इस चीज़ को आप रब पे छोड़ दें, इस चीज़ को मैंने भी रब पे छोड़ दिया है। हमने, जैसे हमारे शेख फरमाते हैं ना कि मौज़न जब अजान दे रहा होता है तो वो कानों में उंगलियां ठोंस के किसी की बात नहीं सुनता, जो कोई कहता रहे वो अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता रहता है, यहाँ तक कि अपनी अजान ख़त्म करता है। हमने भी अपनी ये अजान जो हम दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, इस बुलावे को हमने पहुंचाना है। और आप देखें अमल ज़ाया नहीं जाता। कल हमारे शेख बता रहे थे कि उनके परदादा गलियों में लोगों को सैरी के लिए जगाते थे। आज कहते हैं पोते पर पोते से अल्लाह पाक ने ये काम लिया है कि मिलियंस ऑफ पीपल को वो रमज़ान और अमाल पे सुबह दोपहर शाम लगा रहे हैं। और उस वक़्त मैं सोच रही थी कि मेरे अब्बू जी अल्लाह पाक उनको और उम्मत के एक एक वालिद और वालदा को और एक शख्स को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनको हमने गिनती करते हुए कभी एक दो की तरह नहीं गिनती देखा। जब भी उन्हें कोई चीज़ गिनी है, वो पैसे हैं, वो कोई भी चीज़ है, एक दो नहीं कहा, बरकत 2 3 4, एक को उन्होंने बरकत बोला है। आज वो बरकत नस्लों में नजर आती है। हमारे बड़ों के अमाल हमारी नस्लों के लिए काम आएंगे। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सदाएं रायगान नहीं जाएंगी, ये सदाएं फजाओं में रहेंगी, ये नस्लों को इंशाअल्लाह तासीर देंगी। ये हो नहीं सकता कि रायगा जाए। आपने मुअज्जिन की तरह कानों में उंगलियां दे के अमाल करते जाना है और अल्लाह से खैर की तवक्को रखनी है, और वो खैर अता फरमाएगा। और आज की रात सूरत कौसर और शब जुमा इकट्ठी आ रही हैं। सोचे तो सही, शब जुमा में वैसे ही अमाल, यानी रमज़ान, शब जुमा और सूरत कौसर। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको आज की रात सूरत कौसर पढ़ना मुबारक करे। सूरत कदर का अमल आज 11 बार आपने करना है। पहली रात से एक बार किया, फिर हर रात एक एक दफ़ा बढ़ाते गए। आज 11 बार सूरत कदर पढ़नी नहीं भूलनी। और कल जुमे के दिन हम इंशाल्लाह जुमा नमाज के बाद भी 11 बार पढ़ेंगे। बाहर स्नो हो रही है, आप सूरत कदर पढ़ें, दुआ मांगें, वज़ू के बाद सूरत कदर को आदत बनाएं, दोस्ती लगाएं सूरत कदर को, खाने के बाद भी पढ़ा करें। और शब जुमा के 3 अमल हैं, ग्रुप्स पे पोस्ट हो चुके हैं, अभी बच्चियाँ फेसबुक पे भी पोस्ट कर देंगी। आपने वो करने हैं 2 हाजत के नफल। पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार, और 4 सूरतें अपने IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, यादाश्त तेज करने के लिए, नस्लों को आर्टिज्म से बचाने के लिए। ठीक है ना। सूरत अलिफ लाम मीम सजदा, दुखान, यासीन और मुल्क, ये आपने पढ़नी है। और तीसरा अमल क्या करना है, सूरत फातिहा 70 टाइम पढ़नी है। फिर हर रात हम उसको 10 दफ़ा कम करते चले जाएंगे। अपनी क़ज़ा नमाज़ों पे तवज्जो करें और इंशाअल्लाह कल रात हम 12 नफल पढ़ेंगे रिश्तों के लिए। अल्लाह करीम आप सबका बैठना हाज़िरी को हजूरी में लगाएं और कबूलियत इंदिल्लाह बख्शें और तवक्कल अल्लाह अता फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। या वलल अव्वलीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। अल्लाह करीम हमारे सारे नफली अमाल इबादात हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अकीदतन आजिज़ी से पेश करते हैं। अल्लाह करीम इन्हें कबूलियत इंदिल्लाह बख्शें, इनकी तासीर अल्लाह करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज औलाद
अमामत के जितने सिलसिले आपकी नस्ल से हैं, सारी सादात नस्ल, अम्बिया, औलिया, मुहद्दिसीन, मौलमीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन, मौरखीन, शहुदा, गासियान, रिजालुल गैब, अल्लाह करीम हम सब के प्यारे और बिलखुसूस फ़लस्तीन के शहुदा, अल्लाह करीम उन सब की कब्रों को नूर नूर अता फरमाए, वसत अता फरमाए, अल्लाह दर्जात अता फरमाए, और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और दुखों में अल्लाह करीम कमी कर दें। अल्लाह सोने सारे फ़कीर हैं, सारे ही बकारी हैं, लाइन में बैठ के हैं, कतार में बैठ के हैं। तू सखी दाता है, तेरे दर पे खाली झोलियाँ खाली हाथ लेके आए हैं। अल्लाह करीम दिल भी कदूरतों से भरे हुए हैं, कोई साफ शफाफ नहीं है, कोई इलम हिलम का दावा नहीं है, झोलियाँ भी खाली हैं। अल्लाह करीम कुछ भी नहीं है, मुकद्दर की लकीरें भी बस टावा टावा है। तू माफ़ कर दे, भर दे, रंग भर दे तकदीरों में, रंग भर दे मुकद्दरों, औलादों, नस्लों में, घरों में। अल्लाह करीम ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा दे। तू जानता है दिल में कितने ऐसी दुआएं हैं जो हम नाम नहीं ले सकते, कितने हमारे प्यारों ने दुआओं के लिए कहा, लेकिन तुझे पता है कि हर एक की एक प्राइवेसी है। अल्लाह करीम किसी किसी का कैंसर डायग्नोज हुआ तो किसी की किडनी फेल है और वो वेंटिलेटर पे है, किसी का लिवर काम नहीं कर रहा। अल्लाह करीम किसी की इतनी दर्दें हैं कि पता चला है कि पित्ता, जिगर, किडनीज, अल्लाह करीम सब में मसाइल हैं। अल्लाह सोने कामिल शिफाएँ, कामिल ईमान, कामिल हिदायत, कामिल बरकत, कामिल आफियत अता फरमा। अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएँ, अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएँ। हमारी लम्हे लम्हे की ज़रूरतें आप पूरी फरमा दें। अल्लाह सोने आप हमारी ज़रूरत हैं, कदम कदम पे ज़रूरत है। मेरे मालिक हम तो कदम भी नहीं उठा सकते, तो हमें कभी खाली ना भेजना। अल्लाह करीम खाली ना भेजना। अल्लाह करीम हरा भरा सरसब्ज़ व शादाब फरमा। घरों में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, जादू है, नजरे बद है। अल्लाह रमज़ान का महीना और घर परेशानियों का मंबा बने हुए हैं, हर कोई नींद की गोलियां खाए सो रहा है। अल्लाह करीम तू रहम कर देना मेरे मालिक, रहमतें बरकतें आफियत नाजिल फरमा दे। अल्लाह सोने अपने दर का मंगता बना के रखना, अपने दर का मंगता बना के रखना, किसी पे आस ना लगवाना। अल्लाह सोने किसी की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हम सारे ही दुखों गमों परेशानियों के मारे हुए हैं। अल्लाह करीम ईमान कमज़ोर, जिस्म कमज़ोर, रूह कमज़ोर, इबादतें कमज़ोर, कुछ भी नहीं है पास। तू आंसुओं, आहों, सिसकियों, अल्लाह करीम आहो पुकार का कदरदान है। अल्लाह सारी उम्र के रोने से बचा लेना, हदायत के फैसले कर दे, मार्फत के फैसले फरमा दे, कलमे पे ज़िंदगी और कलमे पे मौत। अल्लाह सोने मरीज़ शिफा पा जाएं। अल्लाह करीम कितने लोग कर्ज़ों में इतना धंसे हैं कि वो कहते हैं हम अपने घर की हालत बता नहीं सकते। मालिक तू तो जानता है ना। अल्लाह सोने घर घर आंगन आंगन दुखों में, बाल बाल कर्ज़ों में। अल्लाह सोने बिन मांगे हर बे औलाद को बेहतरीन बेऐब औलाद दे, हर बच्चे के लिए बेहतरीन मुत्तकीन का इमाम जोज मुकद्दर फरमा। अल्लाह करीम बेटे, नेमतें, रहमतें अता फरमा। जिनको औलादें दी उनकी परेशानियों से बचा। अल्लाह करीम औलादों के दिलों में माँ बाप की मोहब्बत और इज़्ज़त और कदर डाल दे। जो जेलों में बेगुनाह है, मुकद्दमों में बसे हुए हैं, अल्लाह तो निजात दे दे, खलासी दे दे, घरों में चैन दे। अल्लाह करीम अपना दस्ते शफ़क़त अता फरमा, सतारी के पर्दे अता फरमा। ना यहाँ पर्दादरी करना, ना वहाँ करना, माजूरियों से बचाना नस्लों को। अल्लाह करीम हर घर खुशियों से, फूलों से महक जाए। जहाँ झगड़े हैं या जिनका जो नुकसान हो गया है तलाकों की शक्ल में, अल्लाह उन्हें बेहतरीन बदल अता फरमा दे। ए मेरे करीम मालिक, जो तेरे घर गए हैं उन्हें कबूल फरमा, जो जाने के इरादे से बैठे हैं उन्हें कबूल फरमा। अल्लाह करीम हम सबको पै दर पै हज उम्रे अता फरमा, कबूलियत वाले। ए मेरे करीम मालिक, फ़लस्तीन की खैर, मेरे यमन की खैर, मेरे देश की खैर, मेरे परदेश की खैर, आलम इस्लाम की खैर, मालिक खैर के फैसले कर दे, क्योंकि तू इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। अल्लाह करीम तू मालिक है, तेरे ख़जाने हैं, तू दे दे के रजता नहीं है, तुझे देना पसंद है। अल्लाह करीम तुझे माफ़ करना पसंद है। अल्लाह करीम तेरे सामने सारे खताकार बैठे हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, करम फरमा दे, माफ़ी दे दे, राज़ी हो जा, ख़ात्मा बिल खैर के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह करीम रमज़ान को मुज्तमे और कीमती बनाने की तौफ़ीक दे। तेरी तौफ़ीक से होगा, हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। सोने तुझे पता है हमसे कुछ नहीं हो सकेगा, हमें कुछ नहीं आता, हमसे
हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बड़े निकम्मे और निखच्चू हैं। अल्लाह पाक जी, आप अपनी रहमत की चादर दे दें, अपनी रहमत की छाँव दे दें, अपनी रहमत की छतरी दे दें। अल्लाह करीम हमें चलाएं, नस्लों को चलाएं आजिज़ी, इखलास और तासीर के साथ। अल्लाह करीम, जितने लोग दुआओं की उम्मीद रखते हैं, लिखते चाहते हैं, अल्लाह करीम नहीं लिखते, सबको अता फरमा। फलसफ़ इस्लाम को क़यामत की सुबह तक कायम दायम चला, आफियत बरकत आजिज़ी के साथ चला। सलाहियत स्वालियत वाले लोगों को मतवज्जे फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन या करीम। अस्तगफिरुल्लाह।